So a lot of people, a lot of girls started making story time videos to describe about their life experiences. After watching Rebel Kid, I noticed this. Yeah, but I never clicked on any of them. But yeah, I still binge watch Rebel K, all the other videos. They are so engaging, and it's like she's talking to her own best friend. So it's very engaging. So her storytelling way, her life experiences, it's so exciting. So after getting inspired from her, I am going to share my life stories, which is based on my life, which is true. Okay, so I'll be talking about my love life. अभी थोड़ी देर से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात में लाइक हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों पे लाइक चिल्ला देते हैं, उनकी गलती होती है, फिर भी लाइक छोटे छोटे चीज़ों पे झगड़े हो जाते हैं, जैसे कपड़े इधर क्यों रखे लाइक। एंड उनको मना किया तब भी वो कपड़े लेके चली गई, तब कि उसकी ज़रूरत थी मॉम, फिर भी बट इट्स नॉट हर। इसके पहले मैं 2-3 दिन फंक्शन अटेंड करके आई। सो बेसिकली इट वाज संगीत एंड शादी, और उसके पहले भी एक छोटा सा फंक्शन था। सो बेसिकली बहुत मज़ा आया, और रिवर फ्रंट भी हम लोग गए थे उत्तरायण के दिन। सो या आई हैड रियल फन ड्यूरिंग दिस। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ स्टोरी। सो बेसिकली देर वर सम पीपल इन माई पास्ट मेड मी फील सो टेरेबल, लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइक दे मेड मी थिंक समथिंग दैट आई एम नॉट, एंड मेड मी बिलीव जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लाइटिंग. So this is exactly gaslighting, where people brainwash your minds, and like जो चीज़ 5 साल पहले हुई थी, 6 साल पहले हुई थी, वो मेरे माइंड में इतनी फ्रेश है। लाइक देर माइट बी सम इंसिडेंट्स और सम सिचुएशंस दैट माइट हैव हैपेंड इन योर लाइफ, जिनको तुम जितनी भी कोशिश कर रहे हो भुला नहीं पा रहे हो। तुम लोग जितनी भी हेल्प ले लो, लाइक दोज एक्सपीरियंसेस वर सो हॉरेंडस। लाइक समवन हैज टोल्ड यू, why don't you die? Not one time, not two times, on a row of 5 times. Think about this person. And this person is not someone like, this person has been my classmate, these classmates. So that's a dangerous place to be. So the kind of people you are surrounded by, even they can't be trusted. So और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी हर एक बात एग्री करती हूँ। इनफैक्ट आई डिसएग्री विद majority ऑफ द थिंग्स दैट दे से, बट इन माई माइंड आई एम ओनली टेलिंग देम दैट like, are you stupid? What the fuck did you just say? Like, what did come out of your mind? Like, I told my मेरी एक पहले फ्रेंड थी, तो I told her that uh, you know what, Sadhguru videos, they are like really calming. So what she said that about Sadhguru, I don't believe in God. She is the same person who told me in a row of 5 to 6 times that why don't you die. Like, some people are just so idiotic. She was very pessimistic, obese, and she was my friend at one point, and she ruined a lot of things. Like, how can a person be this mad? And she was probably jealous. Even her friend who gave me death threats, even he was quite a bit jealous and like psychotic. Like, some people exist, I can't even believe that. So और एक छाट भर का आदमी जैसे दिखने वाला बंदा मेरे को बोलता है, डोंट डीएम मी यू फकिंग creep. After bullying and picking up on people, you tend to not take accountability for your actions. Yes, this is the reality of the world and social media today. So, and he एक बार get rex wage वो बोले जा रहा था, what is this, like, you are causing harm to someone. Like, how do such people even exist, man? एंड मैंने फिर बाद में एक मॉडलिंग का डाला था, या मेरे को डॉक्टर बनना था वो डाला था, तो फिर मेरे को लंबे लंबे एक मैसेजेस भेजता था वो जो जेलस बंदा मैंने पहले बताया ना, वो लंबे लंबे, तो वो बंदा लंबे लंबे मैसेजेस भेजता था मेरे को कि मॉडल्स आर द मोस्ट प्रेस्ड पीपल इन द होल वर्ल्ड, एंड गर्ल यू मेक मी laugh my guts out.
Yes, I admit that I checked your profile, but isn't that your job? You fucking creep. It's my job, but I don't want any fucking creep and to watch my stories because मैंने उसको इंस्टा पे पहले ब्लॉक कर दिया था. So he texted me this on WhatsApp. Can you believe this? Can you believe this? Like such people, such jealous people exist in this world. कि मतलब वो तुम्हारा करियर भी रूइन कर देंगे. स्कूल लाइफ तो ख़राब करी तुम लोगों ने, लेकिन करियर भी ख़राब. आई नो तुम लोगों के अंदर झाट वर्क का सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, इसलिए वो बंदा बोलता है कि मॉडल्स आर द मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल इन द होल वर्ल्ड बिकॉज एवरीबडी सीज व्हाट्स आउटसाइड ऑफ देम एंड नोबडी सीज व्हाट्स विद इन देम. दिस इज द सेम पर्सन हु टोल्ड दैट टीचर, ऐसे मुंह बना के बोलता है टीचर काली है या फिर जाड़ी, या किसी रैंडम बंदी को बोल दिया जाड़ी, या मेरे को बोला करिश्मा कपूर इज़ नॉट ब्यूटीफुल ब्रदर देन यू. और मेरे को बार बार इतनी क्रीपी वे में वो देखता था ना. लाइक इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, मेरे सामने आ जाए तो मैं गला दबा दूँ उसका. लाइक नाउ दैट आई एम बिकम लाइक फिजिकली स्ट्रॉन्ग, mentally strong, everybody has to go on that spiritual path of being mentally strong. Physically strong I have always been, but now I feel that मेरे ज़्यादा मुक्के मैं मार सकती हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों को भी. तो ये बंदा इतना छोटा हाइट का वो मेरे को बोलता है कि मेरी हाइट बढ़ गई है, तो मैं क्या करूँ भाई. ये सही बंदा है जो बोलता है लुक. तो Gol, you make me laugh my guts out. I'm glad you are alive because we all need a clown in our life. और फिर ऐसे किसिंग वाले इमोजीज भेजते. Ew, like how do some people even have the audacity to text someone and ruin their देन इतने शुद्ध शब्द, प्योर शब्द इसके मुंह से निकले that everybody looks what's outside of them and nobody sees what is within them. ये सेम बंदा जो लुक्स की हर एक दूसरे बंदे के लुक्स के ऊपर कमेंट करता था, झाट भर का सेल्फ एस्टीम नहीं था. बट इसको तो झंडे गाड़ने हैं. यू नो वॉट, अकॉर्डिंग टू मी modeling is not your cup of tea. The way you reacted, अपना झाड़ भर का ओपिनियन अपने पास रख, समझा. एंड नाउ I'm in a better place. I'm growing a lot spiritually, but yeah, some of these people, like, I don't regret anything, like, but why did they enter my life at all? Like, I just wanted to make you guys aware that criminal mindset people also exist. तुम्हारे आजू बाजू भी होते हैं. So yeah, and also I'll be also talking about my first love. And yeah, this is a cheesy topic, so everybody तुम लोग के कान खुले हो जाएंगे. But you as इतिहास गवाह है कि फर्स्ट लव आज तक हर किसी को बहुत दुख और गम दिया है. सो गेट रेडी. तो मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी बता रही हूँ. तो ये जो बंदी थी ना, वो मेरे क्रश की GF थी. सो वॉट शी डिड, फर्स्ट शी वॉज वेरी क्यूट एंड स्वीट एंड काम एंड इनोसेंट बिफोर शी बिकेम his girlfriend. Now coming to the picture, like 10th grade and all that. So what she often passed comments like on like everyone, like her narcissistic nature इतना टॉक्सिक हो गई थी ना पमंदी, लाइक यू कांट इवन बिलीव. उसने मेरे को बोला था, मैंने उसने मेरे को पूछा था कोई क्रश या बॉयफ्रेंड है, तो फिर आई टोल्ड हर एंड शी सेड isn't he out of your limits. मैंने इसलिए तुझे बताया था मेरा ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, मेरे को हार्ट ब्रेक देने के लिए, जो ऑलरेडी उस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा दे चुका है. वो बहुत ज़्यादा जख्म दे चुका है. ऐसे ऐसे शब्द बोले उस बंदे ने जिससे मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती. कैसे कैसे शब्द निकले उसके मुंह से मैं बता नहीं सकती. रैंडमली वो लड़का दूसरी लड़की, लाइक द S वर्ड, दैट
starts with S and ends with T. And या इतना टॉक्सिक बंदा भाई तू अपने पास ही रख, तुझे ही मुबारक, ठीक है। मैं अपना सेल्फ एस्टीम अपने पास रखूँगी। और ऐसे वाहियात लोग प्लीज़, जो दूसरों को ऐसे ताना मार के खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हो ना, सो भाई फक ऑफ। वो मुझे एक बार टेक्स्ट पे बोलती है कि नोबडी केयर्स अबाउट मी, एंड फिर बाद में एक बार वो रो रही थी, एंड देन मेरा जो वो है क्रश था वो उसको कंसोल कर रहा था कि दैट तू डरती बहुत है। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड हर तो दैट व्हाई व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई वाज ही कंसोलिंग यू, क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो वो बोलती है मेरे साथ ही इज लाइक दिस ओनली, आहा क्वीन behavior only. So some people like, मुझे उनके खुद के ऊपर तरस आता है कि वो मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो खुद क्या है, कचरे के डब्बे से ढेर से निकले हुए अभी अभी पैदा हुए हुए आदमी है जो दूसरे के ऊपर इतना बड़ा कमेंट करते हैं। यू आस्क दिस टू पीपल यू मेट इन योर एंटायर लाइफ, बिच यू डिडंट मीट मी इन माय एंटायर लाइफ। अभी तो तुम मेरे को मिली है और फिर तू अभी कैसे बोल सकती, you cannot comment on someone's whole life. You have only seen my teenage self, and teenage self सब लोगों का कैसा होता है तो वो तो भगवान भरोसे, वो तो सबको ही पता है कि हम लोग क्या ही होते हैं अपनी टीनेज लाइफ में। एक बंदे के पीछे पागल, एक प्यार में पागल, दिमागी हालत संतुलन खो बैठे हुए, पढ़ाई में नष्ट। So yeah, this filter is exactly what I am, प्यार में पागल। तो मैंने उसको बोला ये चीज़, तो फिर उसको पता चल गया, एंड he agreed to be on call with me for like 40 minutes, and I did tell him everything, that how I started liking him and then got attracted to his brother. But ये बात फिर बाद में जब वो घर पे आया था मेरे को ये भी पता था, एंड यू नो आई स्टॉक्ड हिज एंटायर ब्लड लाइन, एंड मैंने उसको ये भी बताया कि मैंने उसकी लड़की के साथ पिक देखी थी तो मेरे को बुरा भी लगा था। सो या तो ही टोल्ड मी दैट या ही इज डेटिंग। थैंक्स फॉर द डिप्रेशन जीसस। तो उसने मेरे को बताया, बट ही ऑल्सो मेड मी फील वेरी काम, ही ऑल्सो गेव मी मैनी एडवाइसेस एंड हाउ टू मूव ऑन एंड हाउ आई कैन फील एग्जैक्टली हैप्पी एज आई वॉज विदाउट हिम ऑल्सो। सो या मेरे को जब वो घर आया था तब भी पता चला था, और जैसे ही घर वो डोर में एंटर हुआ, डोर से एंटर हुआ था तब उसकी आवाज़ आई थी और उसने बोला था दैट ही हैज़ कम। फिर बाद में एक हफ्ते बाद ही टोल्ड दिस पर्सन, एंड माय क्रश, माय दूसरा वाला जो क्रश था बड़ा भाई, तो ही लॉस्ट हिज सेंसेस। लाइक इस बंदी को कैसे पता चला शी लिव्स हियर एंड आई लिव इन बैंगलोर, हाउ द हेल डिड शी टैप मी। So all this thing was I clearly told his flatmate कि प्लीज़ भाई कुछ भी कर लेना, इसकी मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मी तो है ही झांसी की रानी डायन थोड़ी टाइप। उसके पापा अच्छे हैं बट प्लीज़ डोंट। तो पहले तो मेरे को ये बंदा सबसे पहले पसंद आया, फिर उसका बड़ा भाई पसंद आया। यार भगवान मेरे को कैसी सिचुएशन दे रहा है, कैसे लाइफ और कैसे सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है, और ये रहता कितना दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आऊँगी अगर आऊँगी तो। पहले वो इधर ही रहता था बट देन ही हैड वेंट फॉर सम वर्क, ठीक है। तो फिर मैंने पहले तो गिव अप कर दिया था कि भाई ये तो नहीं पटने वाला। तो इसके जैसा कोई और निकला कौन, उसका बड़ा भाई। उसके बड़े भाई से प्यार हो गया मेरे को। कल तो भाई दिमाग ने किधर ही दी है। मजाक कर, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड I appreciate myself a lot, and I have ample amount of self-respect and love for myself now. But some incidents do hurt you and you have to move on from them. So
That's how life works. That's how you grow. सो बेसिकली जो बड़ा भाई है ना वो उसके पापा पे गया है, और जो छोटा भाई है ना वो उसकी मम्मी पे गया है. मम्मी है इगोस्टिक, सेल्फ obsessed, नार्सिसिस्टिक और रूड. एंड सो इज उनका छोटा बेटा जो मेरा पहला वाला था. और जो दूसरा वाला है वो डिसेंट, बट वो ऑलरेडी आई थिंक बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ डिस्टेंस they might have thought that this situation might not have worked. उसके पापा इतने अच्छे थे, उनने मेरे को 5-6 बार बोला था दैट ईशा आपकी बेटी है ना मैम, ईशा मेरी भी बेटी है, इतनी बार बोला. सो ही वॉज लाइक, इतने प्यार से बोला लाइक एंड ऑल दैट. बट मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करने के बजाय ऐसे ऐसे झूठ बोली जा रही है ना, मतलब यू नो दिस, just to support me, don't do anything to her, don't take legal action against her, because उसकी मम्मी जो है वो लीगल एक्शन लेने वाली थी मेरे खिलाफ, because she thought that I was probably harassing her child, but I was not. So yeah. अच्छा अच्छा, कोई नहीं. तो मेरी मॉम मेरे को सपोर्ट करने के वास्ते उनको बोलती है दैट ये तो किसी काम की नहीं है, या फिर इस किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर फोकस नहीं है, इसका इंटरव्यू इतना इंसल्ट होता है ना. मैं 2 दिन पहले इंटरव्यू अच्छा देख के आई हूँ. मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप यार, कुछ भी बोलोगे आप जस्ट टू सपोर्ट मी. मतलब मेरे को एकदम मेंटली डिसेबल्ड टाइप मेरे को बताने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज. सो उनको तसल्ली हो लाइक हम लोग इतने. और ये सब तो सच भी नहीं था कि मेरा हाइजीन अच्छा नहीं है या फिर इंटरव्यू. मैं जस्ट अभी अच्छा इंटरव्यू दे के आई हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं. मम्मी आपको पता है मैं टैलेंटेड कितनी हूँ. आपने तो मेरे डांस वीडियोस बचपन में रिकॉर्ड किए हैं. आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज ओनली 8. You only called me intelligent and sharp, and now in front of them, जहाँ पे तो आपको भू कूट कूट के भर भर के तारीफ करनी चाहिए, आप ऐसा कर रहे हो मम्मी. खुद मेरी मॉम बोल रही है यार कि मेरे को ह्यूमिलेट करो, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो इन फ्रंट ऑफ देम. उनकी लाइक बदल गया साइड, उनके बारे में बोल रही थी बुरा और मेरे को तो अपलिफ्ट कर रही थी. बट नाउ एवरीथिंग अगेंस्ट मी एंड इवन सम अ बंच ऑफ लाइज just to protect me, or like, but these things leave a mark on you, so sharing them would be a pleasant experience. So yeah,